Yes, sir. Now you are audible. Thank you so much. Okay. Dr. Sarvesh, sir, I would like to take you from here. Thank you so much for helping me. Okay, ma'am. Please proceed. Am I audible to you, Vijay, sir? Yes. Yeah, you are audible, ma'am. Thank you so much, sir. Good morning to everyone present here. I am Shreya Goyal, Assistant Professor in the Department of Management and Commerce at Vivek University, Bijnor. Today, we at Vivek University are honored and delighted to have Dr. Devesh Vijay, a retired Associate Professor from Department of History at Zakir Hussain College, Delhi University. Thank you, sir, for joining us on this platform where my students can hear you and my faculty members can also get some insights from you on a very important topic, which is higher education in India and the challenges that they are going to face in the future. Thank you so much for joining us. I'm not that big that I could introduce you, but it is my honor that I am introducing you over here. I would like to give a small brief about you to my students and the faculty members who have joined us through this platform. Dr. Devesh Vijay is an esteemed faculty member of Zakir Hussain College from the Department of History at Delhi University. He has a keen interest in the research in various departments, and his research is multi-field work with the cultural studies. His publication, to give a few names: Writing Politics, Dalits in the Democracy and Their Role, Staggered Developments from Delhi's Margin Point of View. These are just a few names from a range of articles in a various subjects such as economics, political science, personal development, sociology, and much more. Presently, he is working on finalizing a study which is titled as Changing Political Perceptions in a Slum and a Village. His research is vast and multidisciplinary, which combines the fieldwork with the theory which is available in various sectors. Today, sir has joined us to discuss and give a brief insights on the topic higher education in India and the legacy challenges and the future upcoming challenges that we are going to face in such department. Thank you so much, sir, for joining us. Without taking a more time, I would like you to give the platform and you can start. If there will be any difficulty, please let me know in sharing your screen or anything. Thanks a lot, Mrs. Tyagi. I hope my voice is clear to everybody. Yes, sir. Okay. And thanks to Vivek University. I'm really honored and want to congratulate Sarvesh ji personally, because this tool of online lectures, especially if they are recorded and can be heard and used later on by so many others also, once posted on YouTube, etc., is a wonderful technological advancement. And in Bijnor, we are able to link with Delhi and maybe even abroad. This technology should be used, and Vivek University is leading this. I am extremely complimentary about this. So, coming to the topic, the title, as mentioned by Dhyuti already, is about higher education and its legacy and future challenges. Since students are there, Dhyuti, should I talk in English, that is the mixed language, or only English? So Yes, sir. Anything? Sorry? Bilingual with work Yeah, with my yeah, students. okay. They are comfortable with Hindi and English both. Okay. So I will mainly speak in English, but use Hindi intermittently. Now, and I must mention, I will really look forward to questions and criticisms also at the end. So we'll leave some time for that. Definitely, sir. Yeah. First of all, I wanted to share
how do we analyze any social problem or issue? Some omissions are common, so I want to spell out, and along that route, I will proceed with my topic also. See, whenever you analyze a topic, especially in social sciences, first of all, you must define your terms. The key concepts that you are using should be made clear, and its relation with other societal concepts should be highlighted. Then you go about spelling out your aim and methodology, and then collect data, analyze, detect the patterns in the data, especially which are surprising to you, highlight them. And fourth stage is of comparing your findings with other literature on the same subject. Then you should have a historical perspective on your topic. Suppose we are talking about education today in India, but I will also say something about colonial education and how different reformers came in our education system. So this is historical perspective. We should always try to add that when we do any topic in advanced level. Fifthly, you must compare across countries and across regions. This is called comparative analysis. So we will talk about some patterns and data that are significant from other countries also. And then above all, in the end, when you have drawn your conclusions about what are your findings and what new you have found, then you should also say, if you are studying a problem, what can be done about that? Solutions should be suggested, policy implications should be drawn. And also, if you are sincere, you must see what you personally are able to do. In a group, or for example, you are in a college, what can the group do about that problem that college can do? And personally, what you can do, even if the college is not doing, what can, as individuals, we can do in response to that problem and the findings that we have got. So with these outline of the general approach we should have to analyzing social issues, now let's come to the topic at hand, that is education in India, legacy and challenges. So as I said, first we should define our key concepts. So what is education? Education broadly is the cultivation of the mind in a disciplined way, including accumulation of knowledge as well as skills. Education can be for skills also. But this should be a lifelong process. When we talk about school and college education, we are talking about formal education. Informally, we keep on getting educated through personal experiences all through life. But formal education is of school and college or university, which involves institutions which also not only impart knowledge but test your knowledge. And on the basis of that test, they award you a certificate. This is formal education, which can be done through distance mode also, which can be done in an personally attended institute and so on. Now, let us look at the school and college education in India. See, about 30 crore students are studying in India presently. This data is from 2018. I've not been able to update it, but not very far. In 2018, about 30 crore students were studying in India, and only 10% of these are in higher education. In school, now we have achieved the target of more than 95% enrollment. But when we come to college, only 25% of the cohort, you understand? Students, can you tell me, do you understand the term cohort?
कोहॉर्ट का मतलब हुआ आयु वर्ग, जो आपका आयु वर्ग है उसका केवल 25% कॉलेज में है, पढ़ रहे हैं, बाकी लोग कॉलेज नहीं जुड़ पाते। जबकि विकसित देशों में ये रेशियो 66% से ज़्यादा होता है। अमेरिका में और ख़ासतौर पे स्कैंडिनेविया में तो और भी ज़्यादा है। बहुत से बच्चे स्कूल के बाद कॉलेज भी जाते हैं। सरप्राइजिंग बात यह है कि बाहर कॉलेज जाने का उतना शौक नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को अच्छे जॉब्स मिल जाते हैं स्कूल के बाद ही। तुम्हें शायद पता होगा, वेस्ट के अंदर एक ट्रक ड्राइवर भी प्रोफेसर से ज़्यादा कमाते हैं, क्योंकि वहाँ पर ब्लू कॉलर वर्क, यानी कि जो पसीना बहा के जो कमाया जाता है, उसकी बहुत वैल्यू है और रिस्पेक्ट भी है। प्लम्बर भी वहाँ बहुत कमाता है। तो बहुत सारे बच्चे कॉलेज नहीं जाते, उन्हें बड़े अच्छे जॉब्स मिल जाते हैं स्कूल के बाद ही। फिर भी वहाँ पर 66% से ज़्यादा कॉलेज में स्टूडेंट्स हैं। हमारे यहाँ कॉलेज जाना चाहते हैं, पर क्योंकि इंस्टीट्यूट्स इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, इसलिए वो बच्चे कई बार नहीं जुड़ पाते, और कभी कभी गरीबी की वजह से भी ऐसा होता है कि उन्हें फौरन काम में लगना पड़ता है। पर यहाँ एक अच्छी बात है कि परिवार भी, माँ बाप, बच्चे भी कई हैं जो कि पढ़ना चाहते हैं। ये हमारे कल्चर की एक अच्छी बात है, जो जैसे अफ्रीका में नहीं मिलती, शायद पाकिस्तान, अफगानिस्तान में भी उतनी ज़्यादा नहीं है, पर हमारे कल्चर की एक बड़ी अच्छी बात है। बहुत मेहनत करके मजदूर भी कई अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ा रहे हैं कि उनको बेहतर पढ़ाई मिल जाए, जबकि उनके लिए खर्च करना मुश्किल है। सरकारी स्कूलों में कई बार मुफ्त खाना वगैरह भी मिलता है, लेकिन वहाँ भेजने की बजाय बड़े मन से माँ बाप प्राइवेट स्कूल्स का खर्चा भी उठाते हैं, कोचिंग का खर्चा उठाते हैं। तो पढ़ाई के लिए, अध्ययन के लिए हमारे यहाँ, हमारी संस्कृति में एक बड़ी श्रद्धा और निष्ठा है। तो खैर, अगर बीच में भी आप में से कुछ भी पूछना चाहे तो बहुत स्वागत है, आप पूछ सकते हैं कोई सवाल। तो मैं कह रहा था कि हमारे यहाँ करीब 25% ही कॉलेज में है बच्चे उस आयु वर्ग के जो हो सकते थे, और ये रेशो बाहर कहीं ज़्यादा है। लेकिन इससे बड़ी दिक्कत हमारी कॉलेज की पढ़ाई की ये है कि ज़्यादातर बच्चे प्रोफेशनल एजुकेशन चाहते हैं, पर वो इंस्टीट्यूट्स बहुत कम हैं। केवल 20% बच्चे पॉलिटेक्निक, ITI, इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह में जाते हैं, जबकि उनसे उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ जाती है। कहीं ज़्यादा डिग्री कॉलेजेस में। अब डिग्री कॉलेज की पढ़ाई बहुत अच्छी है, उन्हें वो बहुत ज़रूरी है, कम्युनिकेशन स्किल हमारे बनाती है, हम उससे मीडिया में जा सकते हैं, हम गवर्नमेंट जॉब के अलावा उसमें तो जाते ही हैं, पर इसके अलावा आजकल एक नया सेक्टर आ गया, एड्यूटेनमेंट, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट को मिला के वीडियोज़ वगैरह बनाए जा रहे हैं। तो बहुत सारे इसमें भी करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। पर नर्सिंग है, मेडिकल है, इंजीनियर, इन सब बच्चे ज़्यादा जाना चाहते हैं, पर सीटें कम होने की वजह से केवल 20% प्रोफेशनल एजुकेशन में जा पाते हैं। अब इसके अलावा एक और जो बड़ी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, मैं अभी प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ हम हायर एजुकेशन में क्या क्या है। कुछ दिक्कत हमारे यहाँ पहले खासतौर पे ज़्यादा थी, अब तो कम हो गई है। फेक डिग्रीज, चीटिंग, इस सब की भी बीच में आ गई थी। तुम्हें याद होगा बिहार वगैरह के फोटोज़ आए थे, माँ बाप खिड़कियों पे लटक के अपने बच्चों की चीटिंग करवा रहे हैं 3री मंजिल तक, और मिनिस्टर्स अपने बच्चों को बगैर अटेंड करवाए उनके लिए डिग्रियां उपलब्ध हो जाती हैं वगैरह। व्यापम स्काम में एक बहुत बड़ा हुआ था। पर फॉर्चुनेटली अभी पिछले कुछ सालों में कोर्ट इत्यादि ने बहुत सख्ती की है और ये दिक्कतें अब कम हो गई हैं। पर जो सबसे बड़ा एक उदास करने वाला पहलू है हमारी हायर एजुकेशन का, वो ये है कि एम्प्लॉयबिलिटी और जॉब्स बहुत कम है। जिसका एक नमूना हमने देखा था कि PhD किए हुए बच्चे सैकड़ों की संख्या में स्वीपर की कुछ नौकरियां निकली थी, 20-25 नौकरियां इलाहाबाद में। उसके लिए PhD और पोस्ट ग्रेजुएट्स तो खैर कितने अप्लाई कर रहे थे। और ये सच्चाई है कि 1000 सिविल सर्विस की नौकरियां आती हैं करीब हर साल, उसमें से 100 केवल IAS बनते हैं, और बैठते कितने बच्चे हैं? 10 लाख से ज़्यादा। तो एक बहुत बड़ा डिस्प्रपोर्शन है पढ़े लिखे लोग जो निकल रहे हैं और हमारे पास जो फॉर्मल सेक्टर जॉब्स
इनफॉर्मल सेक्टर में तो बहुत सारे जॉब्स हैं, जैसे तुम्हें जानकर खुशी होगी कि अभी हमारे कृषि में वैज्ञानिक तरीके से खेती करने वाले बहुत कम लोग आए हैं। अगर पढ़े लिखे बच्चे वापस खेतों में जाने लगे तो बहुत कुछ कमा सकते हैं। उनके पास कई बार ज़मीनें भी हैं, लेकिन बच्चे जाना नहीं चाहते, और हम भी कॉलेज वगैरह में उसकी ट्रेनिंग नहीं दे रहे। जबकि थोड़ा सा अगर साइंटिफिक एग्रीकल्चर सिखाया जाए, जैसा इजराइल में, ब्रिटेन में, जर्मनी में, लोग बहुत अच्छी कमाई कर सकते हैं खेती से भी, खासतौर पे एक्सपोर्ट करके। तो ये एक मिसमैच है हमारी हायर एजुकेशन में, जॉब्स और जो एक्चुअली ट्रेनिंग हम लोग दे रहे हैं उसके बीच। अब कुछ बातें मैं बताता हूँ कि खाली हमारे देश में नहीं, शिक्षा की कुछ कमियां पूरे विश्व में देखी जाती हैं। जैसे तुम्हें पता होगा कि जो एंजाइटी और डिप्रेशन वगैरह है वो एजुकेटेड लोगों में कहीं ज़्यादा होता है अनएजुकेटेड से। अब ये सारी दुनिया में है, विकसित देशों में जहाँ अच्छी शिक्षा व्यवस्था है वहाँ पे भी ऐसा है। तो हमें शिक्षा को बहुत समुचित बनाना होगा, केवल किताबी ज्ञान नहीं बल्कि होलिस्टिक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर हमें ध्यान देना चाहिए। अब होलिस्टिक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या होता है, इसकी तरफ कुछ कोशिश न्यू एजुकेशन पॉलिसी में की गई है। अभी मैं इस पर आऊँगा कि चेंजेस क्या आए हैं और क्या रह गए हैं, उसकी बात अभी हम करेंगे। पर जैसा मैंने कहा, होलिस्टिक एजुकेशन ज़रूरी है। उसमें क्या क्या आता है, किताबी ज्ञान और मेंटल इंटेलिजेंस वगैरह के अलावा एक अच्छी पर्सनैलिटी में क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो फिटनेस, हेल्थ एंड फिटनेस दुनिया में सबसे इम्पॉर्टेंट है। तुम आईएएस भी बन जाओगे, जज भी बन जाओगे, अगर तुम्हारी हेल्थ अच्छी नहीं है तो ज़िंदगी तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी। सबसे इम्पॉर्टेंट है पर्सनल फिटनेस। अब इस पर गेम्स वगैरह होते हैं कॉलेज में, लेकिन और ज़्यादा उस पर नंबर भी होने चाहिए। सबको गेम्स में पार्ट लेना चाहिए, और ये तभी होगा जब उस पर नंबर भी रखे जाएंगे। दूसरा क्या आता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, इमोशनल बैलेंस होना चाहिए। ये जो अभी मैं डिप्रेशन एंजाइटी की बात कर रहा था, ये एजुकेटेड लोगों में ज़्यादा होता है। अब ये कैसे सिखाया जा सकता है, इसके लिए एक बहुत अच्छा तरीका है, आर्ट और लिटरेचर का उपयोग होना चाहिए। जो जिन लोगों को एक अच्छी आर्ट, अच्छी लिटरेचर, अच्छे सिनेमा, अच्छे म्यूज़िक का शौक लग जाता है, वो उनके अंदर एक आनंद आता है पर्सनैलिटी में ही, मन में, जिससे वो डिप्रेशन वगैरह से बच सकते हैं। बल्कि इसका ये कहा जाना चाहिए कि एक जो सेंसिटिव एजुकेटेड पर्सन होता है वो गम में भी खूबसूरती ढूंढ सकता है। यही तो हमें शायरी, आर्ट, म्यूज़िक सब सिखाता है, और इसको हमें एजुकेशन के अंदर कॉन्शियसली कल्टीवेट करना चाहिए। ये हम कुछ लोग कल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्ट लेके थोड़ा बहुत सीख पाते हैं, पर इस पर भी अगर नंबर हो तो ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। तुमने देखा होगा जो लोग बहुत खिलखिलाते हैं वो ज़्यादा खुश नहीं होते। कई बार कोई सीरियस सौम्य व्यक्तित्व वाला व्यक्ति ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि उसके अंदर एक स्पिरिचुअल, एक डीपर हैप्पीनेस होती है। ये कल्टीवेशन से आती है, ये आर्ट और लिटरेचर के तरफ रूबरू होने से आती है। एक और पहलू होता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का, सोशल स्किल्स। देखो, अगर तुम बहुत पढ़ाई करोगे, या तो आईआईटी, आईएएस वगैरह में निकल गए तो ठीक है, वरना कई बार पढ़ाई ज़्यादा काम नहीं आती दुनियादारी में। दुनियादारी में सोशल स्किल्स चाहिए। अब सोशल स्किल्स भी कॉलेज में तुम लोग थोड़ा बहुत सीखते हो, क्योंकि तुम्हें फ्रेंड्स बनाने होते हैं, कभी फ्रेंडशिप टूटती है, उस सबको तुम्हें टैकल करना आता है, लेकिन कॉन्शियसली नहीं सिखाया जा रहा। ये करिकुलम में होना चाहिए। किस तरह से हम बच्चों को ज़्यादा ग्रुप एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करके उनके सोशल स्किल्स डेवलप करें। तो ये खैर होलिस्टिक एजुकेशन की बात है, और ये कमियां खाली हमारे देश में नहीं, जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है जिसमें किताबी ज्ञान पर बहुत ज़्यादा जोर है और उसी पे नंबर दिए जाते हैं, ये दुनिया भर में महसूस की जा रही है। इंडियन एजुकेशन का एक प्रॉब्लम और था कि हम जीडीपी तुम लोग समझते हो, कोई बताएगा जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जो हमारा राष्ट्रीय सालाना उत्पाद होता है,
उसकी टोटल वैल्यू को कहते हैं। तो बहुत से जो एजुकेशनिस्ट हैं और बाहर की दुनिया में भी करीब जीडीपी का 6% शिक्षा पे खर्च किया जाता है। हमारे देश में अभी 20 साल पहले तक केवल 3% खर्च किया जाता था, जो कि पिछली सरकार जो यूपीए की सरकार थी उसमें बढ़ाकर मनमोहन सिंह जी के टाइम में 4% किया गया और अभी उसको 4.5% कर दिया गया है। लेकिन 6% आइडियल होता है, जैसा कि स्वीडन, फिनलैंड वगैरह जैसे देश, फ्रांस में है। तो ये एक समस्या है। पर खाली अभी हमने, जैसा मैंने कहा, 3% से 4.5% पर आ गए और इसी वजह से तनख्वाहें वगैरह भी टीचर्स की अच्छी हो गई हैं। लेकिन फिर भी सरकारी कॉलेजों और स्कूलों में ख़ास तौर पे और इवन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी वो अभी तरक्की नहीं आ पाई है जो कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ को, कॉलेजेस को दुनिया के पहले 100, पहले इवन 500 के अंदर ला सके। पहले 500 में दुनिया भर में हमारे आईआईटी और आईआईएम्स ज़्यादातर आते हैं। हमारे डिग्री कॉलेजेस उनमें अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। तो खाली सैलरी बढ़ाने से, पैसा बढ़ाने से समाधान नहीं होगा। सबसे बड़ी बात मैंने अभी क्या कही कि हमें करिकुलम को बच्चों की नीड्स के हिसाब से थोड़ा और चेंज करना पड़ेगा। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये कोशिश की जा रही है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी से हम देखते हैं क्या क्या चेंजेस आए हैं। तुमने देखा होगा, एक तो टेक्नोलॉजी अपने आप ही 1990 के बाद से इंटरनेट आया, कंप्यूटर्स आए, फिर उसके बाद मोबाइल और यूट्यूब वगैरह आ गए। अब बहुत सारी जानकारी और हर तरह के वीडियोस वगैरह अब डिजिटली मिल जाते हैं। सरकार ने भी डिजिटल लाइब्रेरी बना दी है। एनसीईआरटी की सारी किताबें वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हो। उनका ट्रांसलेशन भी ऑटोमेटिक मिल जाता है। अगर तुम्हें कोई कन्नड़ राइटर की भी किताब पढ़नी है, गूगल उसे फ़ौरन कुछ मिनटों में ट्रांसलेट करके दे देता है। और अब तो चैट जीपीटी आ गया है। चैट जीपीटी के बारे में कितने लोग जानते हैं? आप सब लोग शायद म्यूटेड हैं। अगर कोई बताएं चैट जीपीटी के बारे में क्या जानते हैं? द्युति आप बोल रहे हैं, आपकी पर आवाज़ नहीं आ रही। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कई ऐप्स हैं, उनमें से एक चैट जीपीटी है। इसके अलावा जेमिनी है गूगल का। आप इनसे बहुत सारी पर्सनलाइज्ड जानकारी। Repeat the question. हाँ, मैं जानना चाह रहा था बच्चों में से कितने लोग चैट जीपीटी के बारे में जानते हैं? ओके, तो क्योंकि समय कम है, चैट जीपीटी से तुम बहुत सारी पर्सनलाइज जानकारी, इसको यूज़ करना सीखना चाहिए। बस शर्त ये कि बहुत ज़्यादा टाइम स्क्रीन पे मत लगाओ और ज्ञान के लिए इस्तेमाल करो, एंटरटेनमेंट के लिए बिल्कुल मत करो। एंटरटेनमेंट हमें वैसे ही 1-2 घंटे से ज़्यादा करना ही नहीं चाहिए और उसके लिए हमें अच्छी कहानियाँ, अच्छा लिटरेचर और अच्छी फिल्में भी कई बार बहुत अच्छा प्रभाव डालती हैं। तो चैट जीपीटी हाँ, कोई बता रहे हैं? would like to या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में क्या जानते हैं आप? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक नई विधा है जिसकी कंप्यूटिंग पावर इतनी ज़्यादा है कि कुछ सेकंड्स में आप कुछ भी पूछेंगे तो वो दुनिया भर के करोड़ों फाइल्स जो डिजिटली अवेलेबल है इंटरनेट पर, उन सबको छान कर, खंगाल कर आपको कुछ सेकंड्स में वो जवाब दे देता है। ये है चैट जीपीटी। आगे जाकर हमें रोबोट्स भी ऐसे मिल जाएंगे जो हमारे घर के काम करेंगे वगैरह। ये सब भी सॉफ्टवेयर की वजह से होगा। खैर, तुम लोग लकी हो, हम लोग तो शायद कुछ दिन में अब गुजर जाएंगे लेकिन तुम एक बहुत बड़ी क्रांति और देखोगे जो हेल्थ सेक्टर में आएगी। बहुत सी बीमारियां जिनके सही इलाज अभी नहीं हैं, लोग डायबिटीज़ और मोटापा, आर्थराइटिस, कैंसर, जिनके अभी पूरे इलाज नहीं है, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कुछ ही समय में इन सब के पुख्ता इलाज आने की उम्मीद है।
और ये हो जाएगा तो ये दुनिया की शायद सबसे बड़ी क्रांति होगी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से बड़ी क्रांति होगी, कंप्यूटर रेवोल्यूशन से बड़ी, जब यूथ का स्पैन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो हमारे युवा की जो एनर्जी होती है वही एनर्जी लोग 70-80 साल तक अगर महसूस कर पाएंगे तो वो बहुत बड़ा एक बदलाव होगा। उससे हमारी क्रिएटिविटी भी बहुत बढ़ेगी और उससे अध्ययन करना, शिक्षा का फ़ायदा उठाना, ये सब भी ज़्यादा मुमकिन हो पाएगा, हमारी क्रिएटिविटी बहुत बढ़ जाएगी। खैर, मैं बताया था कि हमारी जो दिक्कतें हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो अनएम्प्लॉयबिलिटी है हमारे ग्रेजुएट्स की, वो है, और इसके आंसर में बहुत समय से कोशिश की जाती रही है। हमारे यहाँ तुम्हें पता होगा मॉडर्न एजुकेशन अंग्रेज़ों के टाइम में आई और मैकॉले उसके बहुत बड़े एक प्रणेता थे। अंबेडकर जी की कल जयंती है। अंबेडकर जी शिक्षा को बहुत बड़ा टूल मानते थे, बदलाव का भी और सामाजिक न्याय का भी। और वाकई अगर एक चाहे गरीब घर का बच्चा हो, अगर उसमें टैलेंट है तो उसे कुचला कभी भी पीछे ना रहना पड़े। अब ये कब होगा? क्योंकि वो एक कमरे के घर में अगर रहता है और उसको घर के काम भी करने हैं और फिर बाकी बच्चों से भी compete करना है जो कि थोड़े ज़्यादा मिडिल क्लास की वजह से या अपर क्लास से आते हैं, उनके पास सहूलियतें ज़्यादा हैं, तो ये तो न्याय नहीं हुआ। तो इसका न्याय कैसे होगा? क्योंकि फैमिली भी असमानता का एक बहुत बड़ा कारण होती है। माँ बाप सब नेचुरली ताकत लगाते हैं पूरी अपने बच्चे को करियर में सफल बनाने के लिए। अब वो हर बच्चे के माँ बापों का क्षमता अलग अलग है, तो उसको हमें राज्य या समाज के माध्यम से कुछ बराबरी का मौका देना है। वो कैसे होगा? जब जो टैलेंटेड बच्चा है उसको अच्छे से अच्छा हॉस्टल मिलना चाहिए, लाइब्रेरीज होनी चाहिए दिन भर बैठकर जहाँ वो पढ़ सकता है, एयर कंडीशन लाइब्रेरीज होनी चाहिए हर जगह। अगर उसके घर में जगह नहीं है पढ़ने की तो उसे पीछे ना रहना पड़े। और ख़ास तौर पर रिजर्वेशन से ज़्यादा मुझे लगता है कि ये सब अगर हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा सबकी भलाई होगी। अब खैर हम आते हैं कि टेक्नोलॉजी के अलावा और बड़े चेंजेस क्या आ रहे हैं। हमारे यहाँ कोठारी कमीशन बना था, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2016 से आई, अभी इम्प्लीमेंट होनी शुरू हो गई है, हालांकि इसमें विलम्ब बहुत ज़्यादा हुआ है। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में तुम्हें पता होगा कि स्कूल लेवल पे भी कई चेंजेस हुए हैं। एक बहुत अच्छा चेंज ये हो गया है कि आप बोर्ड का एग्ज़ाम एक बार नहीं 2 बार होगा। अगर आप किसी तबीयत ख़राब की वजह से या किसी कारण से नहीं दे सकते तो दोबारा बैठ सकते हैं। इसी तरह से एक बहुत अच्छा बदलाव ये हुआ है कि मैथ्स और साइंस जिनकी वजह से बच्चे ट्यूशन्स में फंस जाते हैं, वो आप लाइटर कैटेगरी का भी ले सकते हैं। अगर आपको इंजीनियरिंग मेडिकल में नहीं जाना है तो आप लाइटर कैटेगरी का मैथ्स और साइंस ले सकते हैं। यहाँ तक कि मैथ्स और साइंस के बगैर भी 9th-10th पास कर सकते हैं। आप उसकी जगह कोई स्किल का सब्जेक्ट ले सकते हैं। लेकिन कमी इसमें यह है कि जो इनका उद्देश्य है कि स्किल्स को बहुत ज़्यादा जोर दिया जाए, पर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल क्रिएट नहीं हुआ है स्कूल्स में, कॉलेजेस में भी। और उसके लिए हमें नए तरह के टीचर्स की ट्रेनिंग चाहिए, वो अभी बहुत ही अधूरा है काम। तो ये जो बैलेंस करने की ज़रूरत थी, जो मैकॉले ने हमको बहुत ज़्यादा किताबी ज्ञान वाली एजुकेशन अंग्रेज़ों ने हमारे देश पे थोप दी थी, जिसकी वजह से हम लोग अधमरे से ही युवा पैदा करते हैं। उसकी जगह जो मैंने कहा ना, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बहुत सारे पहलू होते हैं, सब पर ध्यान दिया जाना चाहिए। वो नहीं हो रहा था क्योंकि खाली किताबी ज्ञान पे नंबर मिलते हैं, उसी पे एग्ज़ाम होता है। हो सकता है कोई एक ट्राइबल बच्चा है, वो बहुत अच्छा सोल्जर बन सकता है, लेकिन वो मैथ्स पे कमज़ोर नहीं कर 10th पास नहीं कर पाता तो वो सोल्जर भी नहीं बन पाएगा। ये किस तरह की व्यवस्था थी? तो इसको अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी कुछ हद तक ठीक कर रही है, इस तरह के ऑप्शंस देकर। और कॉलेज के अंदर भी स्किल और इंटर्नशिप पर जोर दिया जा रहा है। आपको अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड ही कुछ इंटर्नशिप प्रोग्राम्स करने होंगे कॉलेज छोड़ने से पहले। और ये भी एक बड़ी अच्छी सुविधा दे दी गई है कि आप अगर बाय चांस किसी वजह से फर्स्ट ईयर के बाद आपको छोड़ना पड़ जाता है तो दोबारा आप कॉलेज बाद में ज्वाइन कर सकते हैं, अपना कोर्स पूरा कर सकते हैं। आपको फर्स्ट ईयर में सर्टिफिकेट मिलेगा, सेकेंड ईयर के बाद डिप्लोमा मिलेगा, थर्ड ईयर के बाद डिग्री मिलेगी, और अगर 4 साल वाला कोर्स करते हैं तो डिग्री विद रिसर्च का सर्टिफिकेट मिलेगा। तो ये
कुछ अच्छे चेंजेस न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी ला रही है, लेकिन ये सब अभी प्रोसेस में है। अब खास तौर पर जो एक कमी मुझे लगती है, जो प्रोग्राम में ही, पॉलिसी में ही नहीं है, वो ये है कि स्किल्स को बड़ा नैरो तरीके से देखा गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी। स्किल्स से मतलब ज़्यादातर लगाया जा रहा है वोकेशनल स्किल्स, जिससे आप कुछ कमा सकते हैं। पर जैसा मैंने कहा था, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होलिस्टिक होनी चाहिए एजुकेशन के माध्यम से, और उसके लिए हमें खाली वोकेशनल स्किल्स नहीं, लाइफ स्किल्स सिखाने होंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, हर ग्रेजुएट को फर्स्ट एड देनी आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? एक आदमी जख्मी हो जाता है, किसी को हार्ट अटैक हो जाता है, एक ग्रेजुएट भी, उसको नॉलेज ही नहीं है कि हम कैसे हैंडल करेंगे। डिजास्टर रिस्पॉन्स आना चाहिए ना, अर्थक्वेक आ जाए, कहीं बड़ी आग लग जाए, स्विमिंग आनी चाहिए। तो ये सब लाइफ स्किल्स में आता है। लाइफ स्किल्स को भी हमें एजुकेशन का पार्ट बनाना पड़ेगा। ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी से नहीं चलेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के नंबर नहीं जुड़ते डिग्री में। तो ना तो प्रिंसिपल्स ध्यान देते हैं, ना माँ बाप ध्यान देते हैं, ना बच्चे जो कि सीरियस हैं। तो वो अपने खाली नंबरों के लिए किताबी ज्ञान पर ध्यान देने लगते हैं, और इनको खाली इन पे लाइफ स्किल्स पे नंबर ही नहीं होने चाहिए, बल्कि जो हमारे बेस्ट एम्बिशन वाले बच्चे जहाँ एडमिशन चाहते हैं, जैसे आईआईटी, नीट, मेडिकल में, उन सब के एग्जाम्स में 10-20 नंबर इन लाइफ स्किल्स पर भी रखे जाने चाहिए। तब सारे स्कूल कॉलेज में इनको बहुत सीरियसली लिया जाने लगेगा। सारी जो मशक्क़त है वो इन्हीं सेलेक्ट एग्जाम्स के लिए तो होती है। लाखों बच्चे कॉलेज स्कूल छोड़कर कोचिंग के अंदर जाते हैं, लाखों खर्च करते हैं, और वहाँ भी यही खाली किताबी ज्ञान, क्योंकि एग्ज़ाम में खाली ये पूछा जाना है। तो हमें नीट का एग्ज़ाम हो, आईएएस का एग्ज़ाम हो, जज का एग्ज़ाम हो, अगर जज के लिए कोई ट्राई कर रहा है और उसकी फिजिकल फिटनेस पूरी नहीं है, तो ऐसे लोगों को नहीं मिलना चाहिए भाई, उस पर भी ध्यान दो। मैं बल्कि तुम्हें बताना चाहूँगा, यूएसए वगैरह में अगर जो टॉप की यूनिवर्सिटीज़ है, हार्वर्ड है, एमआईटी है, स्टैनफोर्ड है, ब्रिटेन के अंदर ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज है, ये दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं। इनके अंदर एडमिशन नहीं मिलता अगर आपने सोशल वर्क नहीं किया है। उसके सर्टिफिकेट्स दिखाने पड़ते, उसके वीडियो दिखाने पड़ते। तो उन सब को भी हमें एडमिशन्स के अंदर काउंट करना चाहिए। खाली किताबी ज्ञान के बेस पर सिलेक्शंस नहीं होने चाहिए। तो ये जब हो जाएगा तो हमारी शिक्षा व्यवस्था में बहुत अच्छी क्रांति आ जाएगी। और जैसा मैंने कहा कि कोर्सेज तो कुछ इंट्रोड्यूस हो गए, इंटर्नशिप वगैरह आ गया है, वोकेशनल सब्सिडरी सब्जेक्ट्स आ गए हैं, लेकिन उनके लिए भी लैब्स वगैरह नहीं है और ट्रेन टीचर्स नहीं है, सबसे बड़ी दिक्कत। पर अगर ये सब काउंट होने लगे आईआईटी में, आईएएस में, जुडिशरी के एग्ज़ाम्स में, तो बच्चे अपने आप क्रिएट कर लेंगे। इनके लिए यूट्यूब वीडियोज़ आ जाएंगे, इनके लिए लैब्स भी बन जाएंगे, क्योंकि लाखों लोग अभी ऑलरेडी खर्च कर रहे हैं नीट क्लियर करने के लिए, आईआईटी क्लियर करने के लिए। एक तुम्हें पता होगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज आया है, उसके लिए तुम्हें भी तैयारी करनी है। अब क्वेश्चंस रोट लर्निंग चेक नहीं करेंगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड ये लोग बोल रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि आप रीजनिंग कितनी कर पाते हो, आप एप्लीकेशन कितना दिखा सकते हो नॉलेज का। तो केस स्टडी देकर या एक सिचुएशनल क्वेश्चन पूछ के कि गांधी जी ने ऐसा किया था, अगर आपके यहाँ कोई अन्याय हो रहा है मोहल्ले में तो आप उसको सबक लेके क्या करोगे, इस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे। ये नहीं कि गांधी जी के आंदोलन क्या क्या थे, यानी कि रट्टे लगाने वाली जानकारी खाली नहीं पूछी जाएगी, आप उस जानकारी को रीज़न करके अप्लाई कैसे कर सकते हो, उस पर अब सवाल ज़्यादा आएंगे। एक अभी बहुत बड़ी दिक्कत यह है कि हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी ना बहुत सारी लैंग्वेजेस, इंडियन लैंग्वेजेस को सबको बहुत इंपॉर्टेंस दे रही है और उसके लिए बहुत खर्चा किया जा रहा है ट्रांसलेटेड बुक्स बनाने। हालांकि ट्रांसलेशन काम तो गूगल कर देता है फ़ौरन, आप दुनिया की कोई भी किताब उठा लो, गूगल आपको ट्रांसलेट करके वीडियो भी बना देगा, ऑडियो भी सुना देगा और उसका प्रिंट आउट भी आपको दे सकता है।
तो ये वाला मेरे ख्याल से थोड़ा सा ज़्यादा रिसोर्सेज की थोड़ी यहाँ वेस्टेज हो रही है। इसके विपरीत जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम एब्सेंटीज़म की है, एब्सेंटीज़म स्टूडेंट्स का भी होता है, कभी कभी टीचर्स का भी होता है, उसको एड्रेस करने की बहुत ज़रूरत है। और हालांकि बायोमेट्रिक वगैरह का प्रावधान अब ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया गया है, लेकिन अभी उसके रिजल्ट्स खासतौर पे रिमोट एरियाज़ में अच्छे अभी भी नज़र नहीं आ रहे हैं। कुछ अभी सर्वे हुए थे राजस्थान के गांव वगैरह में, कई जगह बहुत सारे टीचर्स और स्टूडेंट्स भी एब्सेंट पाए गए। अच्छा हाँ, एक नई पॉलिसी में देखिए एक बहुत बड़ी गलत चीज़ क्या हो रही है। अब टीचर्स के प्रमोशन के लिए वो कितने आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं, इसको बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। उससे क्या नुकसान हुआ है कि जो लोग नहीं भी लिख सकते हैं वो चीटिंग करके, अभी जैसे मैंने बताया चैट जीपीटी से लिखवा के, और मार्केट में भी फेक लिखने वाले लोग हैं, तो फेक पब्लिकेशंस बहुत हो रहे हैं। कई जर्नल्स ही ऐसे बन गए हैं जो कि लिस्ट में तो है यूजीसी की, लेकिन उनमें जेन्युइन रिसर्च की बजाय फेक रिसर्च पब्लिश हो रही है, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। बल्कि स्टाफ रूम्स में खैर पहले गप्पे ज़्यादा होती थी, अब ये लोग लैपटॉप लेके और फेक आर्टिकल्स प्रोड्यूस करने में लगे, जबकि ज़्यादा ध्यान हमें बच्चों के कैरियर पर, उनके पर्सनैलिटी की क्या नीड्स हैं, इन चीज़ों पर, और एक्टिविटीज़ कॉलेज में कराने पर, जिससे कि उनका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अच्छा हो। थिएटर, डिबेट्स, सोशल वर्क, और फर्स्ट एड ट्रेनिंग, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। लेकिन क्योंकि आर्टिकल पब्लिश करने पर प्रमोशन में ज़्यादा वेटेज दे दिया गया है, उससे सारे टीचर उस तरफ लग गए हैं। तो इससे फेक रिसर्च एक तरफ प्रोड्यूस हो रही है, और दूसरी तरफ जो बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए जो इंस्टीट्यूशनल काम होना चाहिए उसमें लोग ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये मेरे ख्याल से इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी से एक गलत स्टेप हो गया है। हालांकि हम लोग इस पर लिख रहे हैं और उम्मीद है कि इसको दुरुस्त किया जाएगा। हाँ, एक मैंने कहा था कि होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए किस तरह की एक्टिविटीज़ और प्रैक्टिकल नॉलेज वगैरह पर ज़्यादा जोर होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एकेडमिक जो नॉलेज है उसकी इम्पोर्टेंस नहीं है। एक्चुअली हम लोग क्या है कि बहुत ज़्यादा रीडिंग्स वगैरह दे देते हैं, जबकि उनकी इतनी ज़रूरत नहीं थी। संक्षेप में जो जानकारी, किताबें अच्छी हैं दुनिया में ऐसी, और उनका ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन भी अब हो जाता है, वो हमें लिस्ट में रखनी चाहिए। जैसे इवन इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को थोड़ा सा लिटरेचर ज़रूर पढ़ना चाहिए। साइकोलॉजी की नॉलेज सबको होनी चाहिए, सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, यानी कि आप कैसे अपने क्षेत्र में ही अन्याय के खिलाफ थोड़ा सा लड़ के देखो, किसी और के लिए कोई लड़ाई करो, किसी के साथ अन्याय हो गया, पुलिस रिपोर्ट नहीं लिख रही है वगैरह। अब इन चीज़ों की प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करो, ये हमें एजुकेशन का पार्ट बना देना चाहिए। पर ये अनफॉर्चुनेटली इग्नोर हो रहा है कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की वजह से। हमारा सारा ध्यान ये है कि भाई हम नीट, जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर बन जाए, लेकिन डॉक्टर को अच्छा इंसान भी तो होना चाहिए। थोड़ा सा अच्छी शॉर्ट स्टोरीज सबको पढ़नी चाहिए, अच्छा लिटरेचर, जिससे मन सुंदर बनता है, जिससे हमारी आत्मा की जो निहित अच्छाई है वो बनी रहती है। ये अच्छा लिटरेचर और अच्छे म्यूज़िक वगैरह से आता है। ये सब पर भी हमें, इवन कमर्शियल जो कोर्सेज हैं उनमें भी थोड़ा सा नंबर इन चीज़ों के लिए भी रखने चाहिए। और ये तभी हो पाएगा जब टेक्सचुअल लोड हम थोड़ा कम कर दें। जो बहुत सारी हम जानकारी वो दे देते हैं जो एमए लेवल में होना चाहिए, वो हम बीए लेवल में दे रहे हैं। इंजीनियरिंग में सेलेक्ट होने के बाद जो पढ़ाया जाना चाहिए वो हम 11th-12th में और कोचिंग में करा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा स्कैटर करने की ज़रूरत है जो टेक्सचुअल नॉलेज है उसको। अभी मेरे पास कितना समय है द्युति? मेरी आवाज़ आ रही है ना? Sir, we are available as हाँ, to continue. ओके ओके।
एक मुझे लगता है कि हाँ, रिक्रूटमेंट जो होता है असिस्टेंट प्रोफेसर्स का, उसमें एक आध चीज़ का ध्यान जरूर देना चाहिए कि जैसे ज़्यादातर बच्चे हमारे इंडियन लैंग्वेजेस के होते हैं, आपके बिजनौर में भी शायद वो ज़्यादा होंगे जो हिंदी माध्यम से लिखना चाहते हैं। तो टीचर्स के सिलेक्शन में ये चीज़ पूछी जानी चाहिए कि आपने अब हिंदी में कुछ लिखा है बच्चों के लिए। ये एक रिक्रूटमेंट में अगर खाली पूछना भी शुरू कर दें तो कितना सारा हमारा ज्ञान हमारी अपनी भाषाओं में अपने आप तैयार हो जाएगा, लोग उसमें लिखने लगेंगे, क्योंकि ये तो बहुत सॉट आफ्टर जॉब है। और हाँ, एक ये हमारे यहाँ एक मुझे कमी लगती है, मेरा भी अपॉइंटमेंट ऐसे ही हुआ था कि एक इंटरव्यू की बेस पर क्लोज डोर के अंदर डिसाइड कर लिया जाता है, जबकि स्कूल टीचर्स का हम उनसे कक्षा में पढ़वा के देखते हैं, पर ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में टीचिंग टैलेंट का टेस्ट ही नहीं होता, खाली एक 6-7 लोगों का पैनल मिलके और सिलेक्शन कर लेता है। ज़रूर उनसे पढ़वा के देखा जाना चाहिए और स्टूडेंट्स उनको कितने नंबर देते हैं उसको भी काउंट करना चाहिए उनके सिलेक्शन में, क्योंकि उनको 30-35 साल के हम अपॉइंट कर रहे हैं, तो टीचिंग टैलेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स तो उनमें होना ही चाहिए। जब हम स्कूल टीचर के लिए टेस्ट करते हैं तो कॉलेज के लिए क्यों ना करें। और हो सके तो इंटरव्यू प्रोसेस की वीडियोग्राफी होनी चाहिए। और जो जैसा मैंने कहा कि जो गरीब परिवारों से बच्चे आते हैं उनके लिए रेजिडेंशियल हॉस्टल अकोमोडेशन वगैरह जब तक नहीं होगी तब तक उन्हें हम compete करने में बराबरी का अवसर नहीं दे पाएंगे। जब मैं होलिस्टिक एजुकेशन की बात कर रहा था तो एक चीज़ कहना भूल गया कि मोरालिटी और एथिक्स ये भी होलिस्टिक एजुकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब मोरालिटी जो है लेक्चर देने से नहीं आती है, एक तो आती है टीचर के अपने एग्जाम्पल से। टीचर्स खुद बहुत हाई मॉरल स्टैंडर्ड कैरेक्टर वाले लोग होने चाहिए, ये सिलेक्शन के टाइम देखा जाना चाहिए। जब वो उनके साथ घूमने जाएंगे, कहीं विजिट पे जाएंगे, टूर पे जाएंगे, तो अपने टीचर को जैसा देखेंगे उससे बहुत कुछ सीखते हैं। लेकिन इसके अलावा सब जगह बहुत अच्छे टीचर्स हम लोग अचानक से अपॉइंट नहीं कर सकते, पर एक तरीका और है जिससे कि मोरालिटी कल्टीवेट होती है, और वो है जो मैंने कहा, अच्छा सिनेमा। अच्छा सिनेमा करिकुलम में होना चाहिए। जैसे बच्चों को मैं बताना चाहूँगा, अगर तुमने नहीं देखी है, बावर्ची जैसी फिल्म देखो, उपकार जैसी फिल्म देखो, या अगर तुम्हें इंग्लिश मूवीज़ देखनी है, सेविंग प्राइवेट रायन, स्पीलबर्ग बहुत बड़े डायरेक्टर हैं हॉलीवुड के, उनकी फिल्म है, या शिंडलर्स लिस्ट। तो एंटरटेनमेंट के माध्यम से मन में जितनी आसानी से उतरा जा सकता है और उससे अच्छा टेस्ट बच्चों में पैदा करके और सेंसिटिविटी पैदा करके, मैं ज़रूर रेकमेंड करना चाहूँगा बच्चों को कि गुलजार हमारे एक बहुत बड़े राइटर हैं, उन्होंने शॉर्ट स्टोरीज़ पर एक सीरियल बनाया है जिसका नाम है किरदार। दुनिया भर की बेस्ट शॉर्ट स्टोरीज़ को लेकर उन्होंने बनाया। तो ऐसे सीरियल्स ज़रूर देखने चाहिए जो आपको बहुत संवेदनशील बनाएंगे और आप उसकी वजह से हमेशा उच्च मापदंडों से अपना बिहेवियर, अपना कंडक्ट निर्मित करोगे लाइफ में। इस तरह से मोरालिटी और एथिक्स बच्चों में लाया जाना चाहिए। लेक्चर्स करके, प्रेयर करके खाली नहीं आता है, और बाबाओं के चक्कर में तो बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। अब एग्ज़ाम्स में भी कुछ रिफॉर्म्स होने चाहिए। एक तो जैसा मैंने कहा बहुत अच्छा हो गया है कि कोई बच्चा एक किसी इमरजेंसी की वजह से एग्ज़ाम के दिन ठीक से नहीं पहुंच पाया, लिख पाया, तो उसे एक मौका और मिलेगा। और चॉइस बहुत बढ़ा दी गई है अब सब्जेक्ट्स की। आप अगर मैथ्स नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, आप कुछ और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अक्रॉस स्ट्रीम्स भी कर सकते हो। आप साइंस का एक सब्जेक्ट लेकर के फिजिक्स के साथ लिटरेचर भी पढ़ सकते हो, ये पहले मुमकिन नहीं था। तो ये एग्ज़ाम्स में एक अच्छा रिफॉर्म न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने दिया है। एक बहुत जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि डेमोक्रेसी की डिमांड है कि बच्चों को उनके जो उत्तर पुस्तिकाएं हैं वो आसानी से दिखाई जानी चाहिए। कई बार बहुत लापरवाही हो जाती है, कभी कभी चेक, ज़्यादातर टीचर्स बहुत निष्ठा से चेक करते हैं, पर कभी कभी लापरवाही भी होती है।
तो उस पर बहुत रोक लगेगी। और कोई बच्चा अगर मेहनत से अच्छा लिख कर आता है और उसकी चेकिंग ठीक से नहीं हुई और उसके तो वो एक बहुत बड़ा अन्याय हो जाता है। तो इसके लिए बेस्ट होगा, टीचर्स भी बहुत ध्यान रखेंगे अपने आप, जबकि बच्चे को राइट होगा अपनी उत्तर पुस्तिका देखने का। ये एग्जाम्स में एक रिफॉर्म आना चाहिए। अब सवाल उठता है कि ये डीप रिफॉर्म्स क्यों नहीं आ रहे। देखो, इसका एक कारण ये है लेगेसी। जैसा मैंने बताया, हमारे पर अभी तक शिक्षा व्यवस्था में मकौले का भूत उतरा नहीं है। मकौले का उद्देश्य था ऐसे बाबू पैदा करना जो केवल क्लर्क वगैरह का काम करते हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का उनका उद्देश्य नहीं था, क्योंकि वो यहाँ पर मजबूत राष्ट्रवादी नहीं चाहते थे। तो ये एक लेगेसी का क्वेश्चन है, वही किताबी ज्ञान वाली शिक्षा अभी तक चली आ रही है। दूसरा एक कारण ये है कि हमारे यहाँ जो एलिट्स हैं, जो उच्च वर्ग है, वो तो बच्चों को बाहर भेज सकते हैं, उनके लिए टॉप इंस्टीट्यूट्स में भेज सकते हैं, पर आम जो बच्चे वो इसलिए वो कहाँ जा रहे हैं उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। एक कारण ये भी है कि जो हमारे टीचर्स भी थोड़ा सा रेजिस्ट करते हैं चेंज को कभी कभी, खासतौर पे जो हमारी ट्रेड यूनियंस वगैरह हैं। इस पर हमें आत्ममंथन करना चाहिए और वही कुछ करिकुलम वगैरह में लाना चाहिए जो कि बच्चों की पर्सनैलिटी ऑल राउंड, जैसा मैंने कहा 5-6 मैंने बातें बताई किताबी ज्ञान के अलावा, जो कि नर्चर की जानी चाहिए, पुष्ट की जानी चाहिए। वो उसके लिए बहुत बड़ा चेंज चाहिए करिकुलम में, और ये टीचर्स के सहयोग से ही आ पाएगा। एक मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, बीच में कितना गलत नीतियाँ ही गलत बनाई जा रही थी। खासतौर पर 2011 के आसपास का जो दौर था, मेरे ख्याल से, मैं मिनिस्टर का नाम नहीं लूँगा, लेकिन उन्होंने मतलब कितना नुकसान किया शिक्षा व्यवस्था का। एक IITs हमारे शिक्षा व्यवस्था के सबसे अच्छे पहलुओं में से है। IITs के अंदर बोर्ड एग्जाम के 50% मार्क्स काउंट करवा दिए। अब बोर्ड एग्जाम दरभंगा में और जहानाबाद में या गोरखपुर में पहले कैसे होते थे, कैसी भयंकर चीटिंग पूरी चलती थी, फर्जी डिग्रियां बनती थी, उनको आप IIT के मार्क्स में 50% एडमिशन के लिए काउंट करवा रहे हो। ये तो मतलब जैसा लगता है कि जानबूझकर शिक्षा व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। इसी तरह से इन्फ्लेटेड मार्किंग की पॉलिसी बना दी गई कि मार्क्स को इन्फ्लेट करके, तब इसीलिए इतना होने लगा कि 100% लाने वाले इतने सारे बच्चे हो गए, तो उनको कंपेयर करना ही मुश्किल हो गया। इसी तरह से पॉलिसी के लेवल पर एक बहुत बड़ा गलत हुआ था, कॉम्प्रिहेंसिव कंटिन्यूअस मार्किंग करके नीति लाई गई। उससे टीचर्स पर पेपर वर्क इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वो टीचिंग पर तो ध्यान दे नहीं पा रहे थे। एक और गलत पॉलिसी लाई गई कि नो डिटेंशन, मेरे ख्याल से 9th तक कोई डिटेंशन नहीं होगा। अब यानी कि किसी को फेल नहीं किया जाएगा। अब उससे कितनी लापरवाही बढ़ गई। स्टूडेंट्स तो खैर थोड़े लापरवाह होंगे, पेरेंट्स भी हो गए, टीचर्स भी हो गए, क्योंकि पास तो सब हो जाएंगे। अब उस सबको आप ठीक किया गया है, लेकिन मैंने एग्जाम्पल दिया कि कभी कभी पॉलिसी के लेवल पर भी कितना जानबूझ के नुकसान करने की एक कोशिश हो सकती है, क्योंकि अगर गलत तरीके के लोग चुने जाएंगे तो फिर यही होगा। एजुकेशन मिनिस्टर ही अगर ऐसे होंगे, अब ये मैंने 4-5 आपको एग्जाम्पल दिए, आप बताइएगा क्या मैंने गलत कहा। ये तो बिल्कुल नुकसान देने वाले कदम थे जो कि एक ही मिनिस्टर के समय में आए थे। अब मैं लास्ट बात पर आता हूँ कि जो भी कमियां हैं या जो कुछ अच्छाइयाँ भी हैं मैंने बताई, उनके बीच रहते हुए हम लोग क्या कर सकते हैं। देखिए, जैसा मैंने कहा, अभी IIT नीट और IAS वगैरह में नहीं पूछा जाएगा कि आपने सोशल वर्क क्या किया, लेकिन आप उस पर मत जाओ। आप होलिस्टिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए कॉलेज के लेवल पे भी काम हो, और कॉलेज भी ना करे तो आप इंडिविजुअली करो। आप शिक्षा को अपने व्यक्तित्व के समग्र विकास के उद्देश्य से देखो। उसके लिए सोशल वर्क भी करो,
फर्स्ट एड देना सीखो, 15 दिन लगते हैं सीखने में। सब बच्चों को सेल्फ डिफेंस आना चाहिए। इजराइल के अंदर मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी है, उसके बगैर ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं मिलती। अब हमारे देश की एक बहुत बड़ी कमी है कि अगर एक गुंडा भी चाकू मार रहा है, लोग छज्जे से भी खड़े होकर देख रहे, वीडियो बना रहे। हमारे हाथ पांव नहीं चलते, हम शोर मचाना भी नहीं जानते, फर्स्ट एड कैसे मंगाई जाएगी ये नहीं जानते। तो ये सब चीजें ये आती हैं सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सिविक कल्चर होना चाहिए हमारी जो एज अ सिटीजन रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो इनके लिए भी ट्रेनिंग कॉलेजेस वगैरह में होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि पुलिस स्टेशन में आपके क्या राइट्स हैं। अगर गलत पुलिस किसी के साथ कर रही है, उठा के ले गई है, बगैर कोर्ट को रिपोर्ट किए वो नहीं रख सकती उसको, उसके साथ वो हिंसा नहीं कर सकती। आपको उसके लिए क्या करना है। तो ये सब चीज़ें हमारी सिविक एजुकेशन में कॉलेजेस वगैरह के माध्यम से कराई जानी चाहिए। हेल्थ और हाइजीन जैसा मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है। और कभी जनरल वार्ड हॉस्पिटल का जाके देखो, उसके बाद कभी लाइफ में उदास नहीं होगे। जिंदगी क्या कुछ हो सकती है, हम कितनी छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाते हैं। तो वो परेशानियां नहीं होंगी जब आप जिंदगी के इन पहलुओं को भी समझ जाओगे। तो ये सब कॉलेज ऐसी विजिट, ये कुतुब मीनार और ताजमहल ये देखने की चीज़ है। ये किसानों के खून से बनाए, उनको लूट के बनाई गई इमारतें हैं। क्यों हम इनको जाकर के देखते? हमें जाकर के देखना चाहिए किसान कैसे रहता है, जो खेत मजदूर है उसका बजट क्या होता है। कभी गांव का भ्रमण करें, कभी स्लम के अंदर जाएं, वहाँ पढ़ने लिखने में क्या दिक्कतें आती हैं बच्चों को, उस गंदगी में कैसे रहते हैं। ये सब हमें जीवन की सच्चाइयाँ हम कॉलेज टूर वगैरह से करा सकते हैं। तो ये सब होलिस्टिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आएगा। और जब मैं जाकिर हुसैन कॉलेज में था तो हमने 10 तरह के इस तरह के प्रोग्राम्स बनाए थे जिनको कलेक्टिव नाम था लर्निंग बियॉन्ड करिकुलम। तो उसके अंदर, और ये उसका मैं लास्ट चीज़ बस बताना चाहूँगा, मैं देखता हूँ युवाओं में बहुत आइडियलिज्म होता है। कई युवाओं में, कुछ तो होते हैं जो दुनिया मेरी जेब में मानकर चलते हैं, उनको तो खैर बहुत धीरे धीरे ही ठीक किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर युवाओं में आइडियलिज्म होता है। और इन सब प्रोग्राम्स के लिए मेरे साथ, जैसे हमने एक हमारे कॉलेज के बराबर में स्लम था जिसका नाम था बस्ती मीर दर, उसकी वीडियोस भी हैं। तो हम वहाँ जाकर के हमने रोटेशन से अपने रख लिया था। हर रोज़ 2-2 जनों की टीम, 4 जनों की टीम जाती थी, बल्कि 6 जनों की टीम, 3 लेवल पे हम पढ़ाते थे। तो 2-2 जने हर ग्रुप में, उनका मदरसा ही था वहाँ पे, तो उसमें कमरे भी मिल गए थे हमें। तो हम अपनी क्लासेस ख़त्म करके, और जब वो बच्चे स्कूल से पढ़ के वापस आ जाते थे उनको पढ़ाने जाते थे। और खाली पढ़ाते नहीं थे, उनको हम कभी कभी आउटिंग पे भी ले गए, उनको 5 स्टार भी दिखाया स्लम के बच्चों को। तो इस तरह से शिक्षा को हमें समाज, सोशल वर्क से भी जोड़ना चाहिए। और अभी तक तो उस पर नंबर नहीं है। यूएसए वगैरह में तो यूनिवर्सिटी एडमिशन नहीं देती अगर आपने सोशल वर्क नहीं किया है। तो पर उम्मीद है हमारे यहाँ भी आएगा। जब तक नहीं भी आता, हमें खुद इस तरह की गतिविधियों में भाग लेना चाहिए। तो मैं यहीं विराम देता हूँ। थैंक यू। आपकी कुछ भी टिप्पणी या सवाल हो तो मुझे बहुत खुशी होगी उनको सुनने और जवाब देने। Thank you so much, sir, for touching all the points. There you have touched the points related to how our curriculum could be beyond the academics. I have a number of points to discuss, but first I would like to request Dr. Anil Sharma, sir, from our university. He is director of our university. So Okay. he would like to join in and say a few words about the lecture since he has joined the whole lecture. So thank you, sir, for joining. Anil sir is here and he would like to say a Thank few you, Gypsy. Thank you very much. Thank you, Sarvesh ji. Sir, it is really beneficial for our students. Your long lecture, rather I will say long debate. You covered all the point very comprehensively, particularly in small towns, semi-urban areas. Students are very reluctant towards their physical health, their mental health, and otherwise extracurricular activities. You
guided very well in this respect. Essential qualities are missing all over the world, not in semi-urban, rather urban and everything. And we are emphasizing for the additional more and more, which is not required in comparison to the basic qualities. This also you addressed. Sir, I would like to submit that we are losing the trust in our youths. Our parents, particularly, they are over caring the youths. Teachers are over caring the youths. Planners are over caring the youths. A very small syllabus which we all have read during our studies is being bread sliced in such a way that students should be comfortable. This will damage our future also. Our education system have lost the biography in the sense that when I was the student of class 1, 2, 3, 4, we were reading the biography in very compact shape of Columbus, Vasco da Gama, etc. But that is totally missing now. Further, you quoted the name of T.V. Macaulay. I will prefer that we should avoid the intention of the Macaulay. We should teach our students how the Macaulay completed the comprehensive task of preparing the IPC, how he completed the task of CPC. This we should and our students should be learned. He may having the bad intention because we are a country and we think they looted us, but we should always apprise to our students that there were ICS officers like Lord Dalhousie, etc., who joined India in the age of 35, 36, and they joined India as a new nation, although they were getting very good rewards. Our student, our teacher should discuss such type of personalities, our Indian personality, maybe spiritual, maybe non-spiritual, avoiding the mantra tantra, everything. This will pay. Your lecture is highly contributory, sir. I wish all success my students and pranam to you, sir. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि मैकॉले ने कई बड़े अच्छे काम भी किए और उनकी चर्चा, अच्छे कामों की चर्चा हमेशा पहले होनी चाहिए, पर क्योंकि आज का लेक्चर शिक्षा पे था इसलिए मैंने सर थैंक यू सर। इंटेंशन बैड है वो भी बताई जानी चाहिए, बट एक्शन गुड है वो भी बताया जाना चाहिए। जी बिल्कुल सही कहा आपने। थैंक यू समीर जी कि आपने मुझे दर्शन भी करा दिए और मैंने सर को सुन भी लिया। थैंक यू थैंक यू। Thank you so much, sir, for joining. I have a number of questions, but I would like to give it to my students first of all. So my students will join in, sir, and they will ask a question from you. I hope it would be okay with you. Most welcome. So the students are joining. Tanu, you can ask your question. Yes, ma'am. Good afternoon, sir. My name is Tanu Chaudhary from MBA. So, Tanu, I request you to please turn on your camera first. While introducing yourself, please try to turn on your camera if that is okay with your network. Yes, ma'am. Sir, my name is Tanu Chaudhary from MBA. And my question is students. Sir, my question is कि students के perspective से देखिए तो higher education को more skill oriented कैसे बनाया जा सकता है? द्युति जरा आप बोल देंगे, मैं ठीक से सुन नहीं पाया। Can you repeat your question, Tanu? Even I was not able to understand clearly. Yes, ma'am. My question is कि students के perspective से देखिए तो higher Tanu, your voice is not clear. You can turn off your camera and then speak. Yeah, now see it? Yes, better. Better. So my question is कि education को students के perspective से देखें तो higher education को more skill oriented कैसे बनाया जा सकता है?
नित्या नाम है शायद तुम्हारा। जैसा मैंने कहा कि देखो, बड़ा परिवर्तन तो तभी आएगा जबकि स्किल्स के ऊपर भी कुछ नंबर, चाहे जज के अपॉइंटमेंट का एग्ज़ाम हो, चाहे नीट का एग्ज़ाम हो, आईआईटी का एग्ज़ाम हो, आईएएस में खास तौर पे जब हम स्किल्स के बारे में भी पूछेंगे तो सारे कॉलेज, टीचर्स, पेरेंट्स, बच्चे अपने आप वो चीज़ें भी इम्पोर्टेंट देने लगेंगे, क्योंकि अभी हमने ये जो हायर लेवल के एग्ज़ाम्स हैं और इवन जो तुम्हारे अपने कॉलेज के एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं, इन पे इनके मार्क्स काउंट ही नहीं होते स्किल्स वगैरह के। अब थोड़ा बहुत स्कूल्स में होने लगे, लेकिन असली बदलाव तब आएगा जब जो प्रेस्टिजियस एडमिशन एग्ज़ाम्स हैं उनके अंदर 10-20% नंबर स्किल्स के ऊपर रख दिए जाएंगे। उससे ये बदलाव फौरन आ जाएगा। Okay, sir. Thank you. वेलकम। Next student, please Tanu, let the other student join. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। My name is Radhi Chaudhary and I am from BBA first year. As you have said, only 20% people choose professional courses in India, and I am pursuing BBA right now. So I am doing a right thing or wrong? नहीं, बहुत अच्छा आपने विषय लिया है। और आपके करना क्या चाहते हैं उस पर डिपेंड करेगा, उससे मैच करना चाहिए। और बीबीए करके आपको टारगेट ये बनाना चाहिए कि अच्छी इंस्टीट्यूट से एमबीए कर लो, तो बहुत अच्छा कैरियर बन जाता है, बल्कि इंटरनेशनली आपके लिए ओपनिंग्स बन जाती हैं। तो कैट का एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करना। और बीबीए में बल्कि ना एक बहुत अच्छी बात है कि जो मैं कह रहा था साइकोलॉजी वगैरह, अब हिस्ट्री का बच्चा कभी पढ़ता ही नहीं है, बॉटनी का स्टूडेंट कभी पढ़ता ही नहीं है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन वाले में थोड़ा बहुत इन सब चीज़ों को भी, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एडमिनिस्ट्रेशन में, तो वहाँ थोड़ा बहुत पढ़ाया जाता है। तो ये कोर्स बहुत अच्छा है, लेकिन वही है कि तुम्हें टारगेट करना पड़ेगा, बहुत अच्छी इंस्टीट्यूट से एमबीए करना है। Okay, sir. Thank you. Next student, please ask your question. Good afternoon, sir. My name is Tanishka, and I am currently pursuing BBA. As you mentioned, GDP growth. So GDP growth is constantly rising, whereas employment rate is decreasing. It's about 1 to 3%. So what could be the solution for youth? Okay, very good question. See, GDP is not continuously rising, but yes, it has reached a good annual rate of about 7% per annum. Formal employment, that is employment in the government sector or in the corporate sector, that is not increasing at the same rate. But informal employment has increased in a big way. This is what our Prime Minister has been repeatedly saying through Mudra Yojana. You know, loans are given. You start your own business. Startups should be encouraged. Okay? So, formal employment may not have grown that much, but informal sector has grown, and that is how GDP has come about in such a rate. And gradually, it will happen here also. See, I'll give you one example. When our middle class has expanded in a big way. Okay? Now, when middle class grows, then demand for Zomato, demand for florists, demand for stand-up comedy, so many things grow, because middle class has the pocket to afford all these services. So, service sector grows in a big way. So, once we reach that middle income category, we become a country of a middle income level. Then it may be possible that tomorrow, suppose you are a singer and you just make one good CD of a song, and from that alone you will be able to make enough money. Like this happens in America. एक CD चल जाए तो वो सिंगर अपना बंगला भी बना लेता है, फार्म हाउस भी खरीद लेता है,
क्योंकि वहाँ लोग के पास सफिशिएंट मनी है, उनको वो चीज़ अच्छी लगती है तो वो सफिशिएंट उसको पैसा दे के खरीदते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, लोग लेक्चर सुनने के लिए वहाँ पर लाखों रुपए की टिकट खरीदते हैं। कंसर्ट्स में तो खैर पता ही है कि इतना ज़्यादा हाई प्राइस होता है, लेकिन अच्छे लेक्चर को सुनने के लिए भी लाखों रुपया देते हैं। तो जब हमारी इनकम बढ़ जाएगी तो बहुत सारे नए जॉब्स अपने आप आ जाएंगे, पर उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। Thank you so much, sir. Next student, please ask your question. Good afternoon, sir. Good afternoon. My name is Suchi and I am from MBA. And my question is, as you mentioned earlier, that in foreign a plumber earns more. So what is the reason behind that? That we Indians are this backward. And how we can overcome from this? How we can develop our skills? Yeah. See, there are two reasons why our blue collar workers get so poorly paid. You must be knowing that in USA or in Europe, for 1 hour of simple waiter's work, you get minimum $15. $15 means about 1500 rupees for 1 hour. So in one day, you can earn what a person earns in 1 month over here. This is the huge difference. You are asking why this difference is there. Obviously, one reason is that GDP is less, per capita income is less over here. So people don't have that money. For example, in a village, if a doctor even decides to live in a village, but what will villagers pay him as fee? 20 rupees, 30 rupees. That's all. Because money circulation, because of per capita income being low, they are not ready to, and they are not able to pay more. Maids we get so easily, or such a low price. In 1500 rupees, a maid is working for a family of 5. और कितना वो पसीना बहाती है, साइकिल पर आती है दूर से, बरसात में, धूप में, है ना? तो उसके वर्क की वैल्यू ही नहीं है। ये डेवलप कंट्री में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि दो रीजंस हैं। एक तो वहाँ पे इनकम ज़्यादा है, लोगों को पैसा देना आता है। दूसरा रीज़न ये है कि पॉपुलेशन ग्रोथ का रेट बहुत कम है। हमारे यहाँ जब गरीब परिवार इतने सारे हैं तो एक मेड कहेगी कि नहीं मुझे 3000 रुपये दो, हम कहेंगे ठीक है हम दूसरी मेड रख लेंगे। जब ये लोग बच्चे पैदा कम कर देंगे तो हमारी नानी दादी याद आएगी, है ना? तो पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से ये हो गया था, पर अब थोड़ा सा ये आने लगा है कि अब शहरों में ख़ास तौर पर हमें अच्छा पे करना पड़ता है। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, मैंने 1988 में एमए किया था, तो उस समय मैंने जब रिसर्च शुरू की तो 20 रुपये दिहाड़ी होती थी। आज दिहाड़ी तुम्हारे एरिया में भी मेरे ख्याल से 700-800 रुपये होगी, दिल्ली में तो 1000 रुपये है। तो 800 रुपये, 20 रुपये से अगर 800 रुपये हो गई तो सोचो कितना, 20 गुना से ज़्यादा बढ़ गई। अब महंगाई इतनी नहीं बढ़ी है, तो रियल वेज बोलते हैं, मतलब महंगाई काट के असल में वेज कितनी बढ़ी है, वो पहले से दुगनी हो गई है। हालांकि वैसे तो 20 गुना हुई, लेकिन क्योंकि 10 गुना महंगाई भी बढ़ गई तो असल में उसे हम दुगना कहेंगे, रियल वेज दुगनी हो गई है। अब इस दुगनी वेज की वजह से तुम देखोगे दलितों के घर भी अब पक्के बन गए गाँव में। दलितों के घर में भी पंखे कूलर लग गए। जब मैं सबसे पहले गांव में रिसर्च करने गया था तो मैं एक दलित परिवार में ही रहता था, तो वो घास की कुछ चटनी वटनी बना के रोटी खाते थे। अब ज़्यादातर गरीब परिवारों में भी सब्जी दाल सब बन रहा है। ये एक बहुत ही अच्छा चेंज आया है। तुम अगर प्रेमचंद की कहानी पढ़ोगे ना, कफन, तुम लोगों ने शायद पढ़ी होगी स्कूल में, वो भूख के ऊपर है कि जब भूख से आदमी परेशान होता है तो कितने रिश्ते भी भूल जाता है। वो अपनी मरी हुई बीवी के कफन के लिए जो पैसा इकट्ठा किया था उससे आलू खरीद के खा लेते हैं और फिर रोते हैं कि वो हमें बद्दुआ देगी। ये कहानी है। तो पहले भूख एक बहुत बड़ी समस्या होती थी, अब वो नहीं है, अब तो फ्री राशन मिल रहा है। ठीक।
अब ऐसे हम धीरे हमारा लेकिन ग्रोथ रेट कम है। चाइना ने बहुत तेज़ी से ग्रो कर लिया है, क्योंकि जैसा मैंने कहा था हम लोग अच्छे नेता भी नहीं चुन पाते। जब मिनिस्टर्स ही गलत पॉलिसीज़ बना रहे हैं तो फिर हमारे मेहनती लोग, अब यही मेहनती लोग अगर अमेरिका यूरोप चले जाए, देखो तुम्हें अगर मौका मिले कुछ समय के लिए ज़रूर बाहर चले जाना, तुम 5 साल में इतना पैसा कमा के आ जाओगे कि यहाँ पर बंगला वंगला सब खरीद लोगे। वापस जरूर आना, देश की सेवा करना, लेकिन एक बार अगर मौका मिले बाहर चले जाओ, नर्स बन के चले जाओ, कुछ भी काम, फिजियोथेरेपिस्ट का बहुत काम है बाहर, और फिर 5-10 साल अच्छा कमा के फिर वापस आ जाओ। Thank you, sir. Thank you so much, sir, for answering in such a simple manner. I would like to request next student to please ask the question. Good afternoon, sir. My name is Anshika Vishnoi from MBA, and my question is, क्या इंडिया को अपनी हायर एजुकेशन लेगेसी को रिवाइव करना चाहिए या फिर मॉडर्न एजुकेशन ही कंटिन्यू रखना बेटर होगा? आप पूछते हैं कि ट्रेडिशनल एजुकेशन हमें रिवाइव करनी चाहिए। देखो हर चीज़ में अच्छाई बुराई दोनों होती है, हमेशा हमें ना लेसर इवल चुनना होता है। अभी लड़ाई चल रही है ट्रम्प की और ईरान की, और अब दोनों में हमें बुराइयां नज़र आती हैं। ईरान ने अपने 40,000 यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स मार दिए, तुम्हें पता है, जो इस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हम बुर्का नहीं पहनेंगे, उन लोगों को फांसी लगा दी। अब ये लेसर इवल है या ट्रम्प की भी कई गलतियां। तो हमेशा खासतौर पे जीवन भी एक युद्ध होता है कभी कभी, उसमें हमें लेसर इवल चुनना होता है। कृष्ण जी ने पांडवों को चुना, पांडवों ने भी तो कुछ गलतियां करी थी, है ना। तो हमें लेसर, हर चीज़ में प्लस माइनस, जैसे तुम लोग मैनेजमेंट में करते हो डेबिट क्रेडिट दोनों साइड देखना पड़ता है, उसका फिर देखो कि लेसर इवल क्या है। तो मेरे ख्याल से एक मिक्सचर चाहिए होगा। ट्रेडिशनल एजुकेशन की हमारी बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, जिनमें खास तौर पर जो हमारा इंडियन कल्चर है, देखो उसमें सबसे अच्छाई क्या है, सबसे बड़ी एक अच्छाई, एक तो तुम्हें पता होगा कि भारतीय संस्कृति ही अभी तक जिंदा है हज़ारों साल से। मिस्र और ये इराक, यूनान, चीन भी सब खत्म हो गए, उनकी ट्रेडिशनल संस्कृति नहीं है अब, लेकिन हमारी सनातन संस्कृति इंडस वैली के टाइम से अभी तक चली आ रही है। शिव जी का पूजा इंडस वैली टाइम में भी होती है, हनुमान की पूजा ओल्ड स्टोन एज में भी होती थी, वो सब हमारा बरकरार है। एक तो हमारे लॉन्ग लिविंग सिविलाइजेशन है हम लोग, पर खाली हम ये नहीं है कि बहुत पुराना हमारा है, इसके अलावा हमारी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दुनिया में कहीं नहीं है। जैसे हमारा परिवार तो चीन में भी होता है, अफगानिस्तान में भी बहुत इज्जत करते हैं अपने माँ बाप की, लेकिन भाई बहन का जैसा सुंदर रिश्ता भारतीय संस्कृति में है, ऐसा दुनिया में कहीं नहीं, है ना। राखी का त्योहार कहीं और होता है? नहीं होता। तो ये हमारे परिवार का एक मामा के घर में बच्चों का हक होता है ना। ये बाहर की संस्कृतियों में नहीं होता, वो तो अपॉइंटमेंट लेके मिलते हैं। तो हमारा परिवार बहुत सुंदर है। तो कुछ चीज़ों को हमें प्रिजर्व करना है, लेकिन कुछ चीज़ें हमारी कमियां भी हैं, जैसे कास्ट सिस्टम तो बहुत गलत था। क्यों अंगूठा कटवा लिया एकलव्य का, कितनी गलत, कितनी बड़ी नाइंसाफी है ना, कि वो क्योंकि वो क्षत्रिय नहीं है। तो हर चीज़ में प्लस, मॉडर्निटी में बहुत अच्छी चीज़ें हैं कुछ। मॉडर्निटी की सबसे अच्छी बात ये है, ये नहीं कि उनका पैसा है, लेकिन अगर तुम जापान जाओगे, अगर कभी जर्मनी जाओगे, वो लोग इतना झूठ नहीं बोलते, हम लोग इतना ढोंग करते हैं, महसूस होगा तुम्हें, है ना। तो हर चीज़ में प्लस माइनस होता है, हमें दोनों की अच्छाइयाँ लेनी है और बुराइयाँ छोड़नी है। Thank you, sir. Now I would like to request my last student to ask the question, and so that we can move ahead. Good afternoon, sir. My name is Vasundhara Rajput. As you mentioned that government is promoting research papers or articles for higher education, but as also inside you also mentioned that there is a in research paper or in articles the quality of the content is also compromised.
how we can measure or tackle the problems to handle to maintain the standards of the research paper or articles. Good, very Like good there question. are various tools. Yes, There are various yeah, tools which can yeah. be used to make a research papers, and government also promoting them also. So there are many steps we can take to maintain the standard. Good question, Vasudha. See, there are tools like Turnitin. So this checks plagiarism. Huh? Plagiarism, you all understand? कि कहीं से कॉपी करके तो नहीं लिख Yeah, गया. yes. बट सी लोग क्या करेंगे, उनको पता है टर्निटिन टूल यूज करके देखा जाएगा हमने कॉपी तो नहीं किया, तो वो थोड़े वर्डिंग्स चेंज कर देंगे, पर कंटेंट तो चैट जीपीटी से लिखवा रहे हैं. क्योंकि अपने आप लिखने में तो बहुत मेंटल कंसंट्रेशन करना पड़ता है, ज़्यादातर लोग कर ही नहीं पाते, 4 पेज नहीं लिख सकते. तो उसकी वजह से फेक रिसर्च फिर भी होगा, खाली वो वर्डिंग्स चेंज कर देंगे, तो उसको प्रोग्राम नहीं पकड़ पाएगा, है ना. तो हमें क्या करना चाहिए कि जो लोग एक्चुअली रिसर्चर्स हैं उनको उस चीज़ के नंबर दें, लेकिन जो टीचर्स रिसर्च माइंडेड नहीं है तो वो कॉलेज के और काम करवाएं. जैसे मैंने कहा सोशल वर्क कोई करवा सकता है, कोई फर्स्ट एड का प्रोग्राम चलवा सकता है, कोई डिजास्टर रिस्पांस सिखा सकता है, कोई जैसा मैंने कहा सिविक ड्यूटीज़, है ना, सबको कोर्ट का किसी गरीब के साथ कोर्ट वगैरह में अन्याय हो रहा है तो कैसे मदद करनी है, ये सब सिविक ड्यूटीज़ में आता है ना. ये चीज़ें सिखाई जा सकती हैं. कितने ग्रेजुएट्स अगर इन कामों में लग जाएंगे तो समाज की कितनी भलाई हो जाएगी. तो जो टीचर्स रिसर्च नहीं कर सकते उनको उसके लिए बाध्य ना किया जाए, उनसे और तरीके के काम करवा लिए जाए और उनकी बेस पे प्रमोशन किया जाए उनका. Thank you, sir. कहीं जाने नहीं देना इनको भी. Thank you so much, sir, for answering all the questions. I am delighted to say this and very honored that the few points that you have touched, like ChatGPT, AI, such things should be involved. Artificial intelligence knowledge should be given to the students, or vocational skills should be added as a subject, or life skills should be added as a subject. Most of our courses have these things as a subject, and I'm very proud to be part of this organization that we include such things in our curriculum. So I guess we are moving in the right direction of and guidance. Now I would like to request Dr. Sarvesh Kumar Seetal sir, Dean of the Management and Commerce Department at Vivek University, to please join us and give a vote of thanks and say a few words about this lecture. Thank you, sir. Sir has joined. Thank you, Shreya ma'am. Very good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Respected guest speaker, Dr. Devesh Vijayji, a retired associate professor, Department of History, Delhi University, my esteemed faculty members and dear students. It's my proud privilege to convey the heartfelt vote of thanks for today's enlightening online guest lecture on topic Higher Education in India, Legacy and Future Challenges. On behalf of the School of Management and Commerce, I extend my heartfelt gratitude to our distinguished guest speaker for sharing such valuable insights and perspective. Your deep knowledge and thought-provoking ideas have truly enriched our understanding of the evolving landscape of higher education in India. सर, आपने वास्तव में जो आपका रियल अनुभव है, जो मैं पूरा लेक्चर मैंने आपका अटेंड किया है, मैं देखा एक एक शब्द जिसके बहुत मीनिंग हो सकते हैं, जिसको बहुत गहराई से समझा जा सकता है. वास्तव में this is really very much valuable lecture for us. I would convey my heartfelt thanks once again to you, sir. I would like to express my sincere thanks to our financial advisor, respected Sri Anil Kumar Sharma sir, for his valuable presence during the session, as he is always the source of inspiration for us.
I convey my thanks to our faculty members for their support and coordination in organizing this session successfully. A special thanks to Dyuti ma'am, to Shreya ma'am, Saloni ma'am, and all the faculty members who are directly or indirectly involved to make this session, this lecture successful. My special thanks to our dear students for their active participation and keen interest, which made this session more interactive and meaningful. Questions थे, that was really good. बहुत अच्छे तरीके से बच्चों ने लेक्चर को सुना है. अच्छे तरीके से क्वेश्चन भी तभी आते हैं जब वो उसको सिंसियरिटी के साथ, कंसंट्रेशन के साथ सुनते हैं. Lastly, I thank everyone who joined us online and contributed to making this session a grand success. और मैं सर से एक और विनम्र रिक्वेस्ट ये करूंगा कि कभी भी सर इधर बिजनौर अगर आपका आना होता है तो आप प्लीज एक बार जरूर आइएगा, और भविष्य में भी हम सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आए और हमारे बच्चों को हमें लाभान्वित करें. थैंक यू सो मच. जरूर सर, बहुत धन्यवाद. और आप भी कभी गुरुग्राम आए तो जरूर मिलिएगा, मेरा नंबर है ही आपके डिपार्टमेंट में, बहुत अच्छा लगेगा. श्योर. थैंक यू सर. Thank you so much, sir, for joining us today. Now I would like to wrap up this session and would be very thankful and grateful to you, and we would be delighted to have you again, whether in an online platform or offline platform, so that our students could be inspired and guided from you as they were today. And I hope we will take all these policies and ideas that you have given, and we would like to include that as a part of our curriculum. And I believe the students also got to know a lot about psychology, how social skills, cultural skills, vocational skills could be part of their curriculum, and it could make them a holistic personality development of theirs. So I hope we will be working on this, and we will get in touch with you in case we will have any problem while executing all of this. Thank you so much, मोस्ट sir, for वेलकम. joining us. एज अ टीचर मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी अगर मैं कोई भी सहयोग दे पाऊँ. Definitely. Thank you so much. नमस्कार.